In the last class, we have discussed about photoperiodism and vernalization. Okay, so today we'll talk further. Phytochrome is the pigment which is responsible for photoperiodism. Phytochrome helps in photoperiodism, and it has two interconvertible forms. Phytochrome has two interconvertible forms. It has two forms, and both the forms are interconvertible. Okay, two interconvertible forms. One is PR and the other one is PFR. Phytochrome has two interconvertible forms. One is PR and the other one is PFR. Here, if we give the daytime, then it is converted into PFR. And if we give the night time, it is converted into PR. Got? Night time, it is converted into PR. Daytime, it is. That means if you are giving red light, it is converted into PFR. And if you are giving far red light, then it is night time is equivalent to which light? Night time is equivalent to which light? Red light or far red? Far red. Yes. Night time is equivalent to far red light. Now you have to answer. For LDP, for long day plant, flowering is induced by which light? Daytime. It is induced by Mohit. Which light? Red or far red? Red. Red. Yes, it is induced by red light. I may say daytime also. Day period, photo period, day period. And which phytochrome is needed? For that, which phytochrome is needed? Ansuman, which phytochrome is needed for that? PR. No, PFR. PR to tha. PR was there, but it must be converted. After sufficient day exposure, it must be converted into PFR. Therefore, which phytochrome is needed? PFR phytochrome is needed. The flowering is induced by red light and accumulation of PFR. Okay, far red light, PFR. First point over. Joy, समझ में आया? Second point. सर टिक्कर ऑन तो लिखी दे सर एलडीपी रा फुल फॉर्म कौन? Long day plant. Long, जिसको डे टाइम ज्यादा चाहिए. Long day plant. एसडीपी का मतलब शॉर्ट डे प्लांट्स. डीएनपी का मतलब day neutral plant. Okay, so only this part is Joy is very important. Only this part. To concentrate for long day. Which phytochrome and phytochromes are of what type? Now the next point for SDP, short day plants. Can I say long night plant? Short day plants. Yes, sir. It can be called as long night plants. For SDP, which phytochrome is needed? The reverse. PR.
Yes, accumulation of PR, small r, you write, clarity will be there. PR is needed. Accumulation of PR is needed. And which light is needed? That already you know. Which light is needed? Far red. Far red light. Far red. And far red light is needed. बस यहाँ तक कर लीजिए. बस ये हो गया. फॉर डीएनपी के लिए, डे न्यूट्रल प्लांट्स के लिए आपको ये सब नहीं चाहिए. फाइटोक्रॉम नहीं होगा भी चलेगा. ठीक है, फाइटोक्रॉम के साथ रिलेशन नहीं है. तो लिखिए फॉर डीएनपी, डे न्यूट्रल प्लांट्स, for day neutral plant, phytochrome is not needed. Phytochrome is not needed. बस हो गया. यहां तक समझ में आ गया आपको? Phytochrome is not needed. Those who are producing fruits and flowers continuously, okay, they are called day neutral plants. Those who are producing fruits and flowers continuously throughout the year. Like some example I'm writing: tomato, sugarcane, sunflower. You'll think sunflower as what type of plants? You'll think it is long day plants? No. Sunflower is a day neutral plant. After flower formation, it is moving towards the sunlight. Okay? But it is a day neutral plant. We have written some of the important points about growth hormone. And now we'll discuss about the movement and then the class. Then we'll go for question and answer format. Okay? तो यहाँ तक मैंने बताया, सबको समझ में आया? यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखो तो ये इम्पोर्टेंट है. एक एक्सपेक्टेड क्वेश्चन लिखो. If night is interrupted by far red light, flowering is done, flowering is induced in dash. If night is interrupted by far red light, flowering is induced in which plant? Is it long day plants or short day plants or day neutral plants? The short day plant. Yes, because far red light is also like night. So it is flowering is induced in SDP. Interrupted word is there. But suppose night is interrupted by red light. Mona Lisa, if night is interrupted by red light, flowering can be induced or not induced? Not induced. Flowering cannot be induced because that is daytime or nighttime? Nighttime. No, red light. Red light is day. Day. So night is, agar night is interrupted by day, then it is not possible. Okay. Far red light, possible. Red light, not possible. Not even in any plants. It is not possible in any plants. Okay. Short day plants, the DNP it is possible because DNP is independent of this. Okay. In case of DNP, it may be possible. तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया. एक्सपेक्टेड क्वेश्चन नंबर 2. सपोज आपने रेड लाइट दिया था, फिर फार रेड लाइट दिया था, फिर रेड लाइट दिया. The flowering is induced in which plant? Flowering is induced in which plant? You are given like this. Day neutral. Day neutral के बाद में लिखना जरूरी नहीं है because it is not connected to this. Okay.
The flowering is induced in which plant? बताओ. LDP. लास्ट वाला क्या था? रेड. हाँ जब तक ये नहीं आया तब तक फ्लावरिंग नहीं हुआ था. ठीक है. हाँ तो लास्ट वाला जो होगा उस पर डिपेंड होगा. ठीक है. long day plant. Suppose इसके बाद मैं why I am giving all these lights alternatively because flowering is not induced. Therefore लास्ट वाला जो होगा उस पर डिपेंड करेगा. स्मरणि का समझ में आ रहा है? लास्ट वाला क्या था? रेड था. रेड था. तो अगर रेड है तो रेड किसके लिए चाहिए? एलडीपी के लिए चाहिए. एलडीपी. तो लास्ट वाला जो होगा उस पर डिपेंड करता है. वो लिख लो एलडीपी. तो ये दो क्वेश्चंस वेरी इंपॉर्टेंट. यहीं से आएगा फाइटोक्रोम ये वो ऐसे आएगा एंड यू कैन आंसर वेरी इजीली. ओके कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा आपको. नाउ विल गो फॉर मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, ऑलमोस्ट द लास्ट पार्ट ऑफ द फिजियोलॉजी बिकॉज obviously we'll repeat photosynthesis, respiration, cellular respiration you have not read, but the last part is we have completed transport, we have completed mineral nutrition with nitrogen fixation successfully for KV and we have also completed growth hormone. Okay, and growth. Now the next part is the movement. तो लिखिए plant movement आपका बुक में नहीं है तो you write, but this is very very important. Movement is there. Okay. प्लांट किंगडम में भी मूवमेंट है जैसे केमोटैक्टिक, केमोट्रोपिक ऐसे मूवमेंट होता है कि नहीं? तो मूवमेंट के बारे में थोड़ा आपको आइडिया होना चाहिए. शुड आई रिमूव? कंप्लीट हो गया? ओम कंप्लीट हुआ? Yes sir. Yes, sir. ठीक है. Yes, तो sir. मूवमेंट इज ऑफ टू टाइप्स. वन इज कर्वेचर मूवमेंट एंड वन इज लोकोमोशन. ओके. प्लांट्स में भी लोकोमोशन होता है. ओके. तो एक पॉइंट लिखिए मूवमेंट ऑफ लोकोमोशन एंड इस साइड में लिखो मूवमेंट ऑफ कर्वेचर. यहाँ पर पूरा मूवमेंट होता है, पूरा ऑर्गन का जो भी है पूरा मूवमेंट होता है. तो इस साइड में पूरा मूवमेंट नहीं होता है. मूवमेंट ऑफ कर्वेचर दिखाई दे रहा है? ओके. थोड़ा अंदाज में लिखिए नहीं तो मूवमेंट ऑफ लोकोमोशन मैं ब्लैक में नहीं लिखूंगा ओनली. ओके. एंड मूवमेंट ऑफ कर्वेचर. ओनली दिखाई दे रहा है? Yes, sir. उसके बाद द मूवमेंट ऑफ लोकोमोशन जो होता है वो स्पॉन्टेनियस भी होता है, अपने आप स्पॉन्टेनियस. सपोज रोमान में डाल देते हैं 1 दिस इज 2 इन रोमान. तो स्पॉन्टेनियस मूवमेंट होता है. ओके. एंड इंड्यूस्ड भी होता है. इंड्यूस्ड को हम लोग क्या बोलेंगे? पैराटोनिक. इंड्यूस्ड को क्या बोलेंगे? पैराटोनिक. लाइक दैट मूवमेंट ऑफ कर्वेचर जो होता है वो भी ग्रोथ मूवमेंट होता है, नहीं तो वेरिएशन मूवमेंट होता है. वेरिएशन मूवमेंट समझ में आ रहा है? टर्गर चेंज, पानी का चेंज होने से उसको वेरिएशन मूवमेंट बोलते हैं. ठीक है. ग्रोथ मूवमेंट एंड वेरिएशन मूवमेंट. तो इसके बाद देखो ये स्पॉन्टेनियस है. तो स्पॉन्टेनियस किस टाइप है? सपोज इसको हम लोग ऐसे कर लेते हैं ए बी ऐसे कर लेते हैं. तो स्पॉन्टेनियस में क्या क्या होगा? ओके. तो फर्स्ट पॉइंट लिखो सिलियरी, amoeboid, ciliary movement, amoeboid movement. Okay. साइक्लोसिस, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग होता है कि नहीं? साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग कहां पर होता है महक? Living, sir. और यूकैरियोटिक किसमें होता है? प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक किसमें होता है साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग? Eukaryotic. यूकैरियोटिक में होता है. ओके. तो हम लोग जो बात कर रहे हैं अभी ये यूकैरियोटिक का फीचर्स है और ये कहां पर ज्यादा डिस्टिंक्ट है वो भी होना चाहिए. ओके. जैसे हाइड्रोफाइट्स में ज्यादा डिस्टिंक्ट है तो वो अपने आप होते हैं ना, अंदर अंदर होता है, किसी के कारण नहीं होता है.
बाहर का फैक्टर और स्टिमुलस इज नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस, therefore it is spontaneous. And this one induced जो होता है, it is induced by certain features. Okay, induced paratonic, इसको autonomous भी बोलते हैं. Spontaneous को क्या बोलेंगे? Autonomous, क्योंकि आपने आप हो रहा है, इंटरनल स्टिमुलस आपका है. ओके, जैसे सेल्फ स्टडी, उसके लिए भी किसी से आप बात करते हो कि नहीं अपने अंदर? ओके, आज मुझे पढ़ना है, आज मुझे पढ़ना है, ओके, आज ये करना है, वो करना है. तो वो जो सेल्फ स्टडी हो, जो अंदर से जो इंडक्शन, उसको भी स्पॉन्टेनियस बोलेंगे. स्पॉन्टेनियस. ओके, कुछ ना कुछ इंडक्शन होता है सब में, बट स्पॉन्टेनियस है. ठीक है, यहाँ पर आ जाओ इस साइड में. इंड्यूस्ड और पैराटोनिक मूवमेंट में क्या क्या होता है? केमोटैक्टिक, या इसको क्या बोलते हैं मालूम है? केमोटैक्सिस. समझ में आ रहा है? केमोटैक्टिक, और इसको क्या बोलते हैं? केमोटैक्सिस. जैसे फ्लैजेलेटेड गैमेट्स, दे आर रीचिंग द एग बिकॉज ऑफ मैलिक एसिड. ठीक है, बिकॉज ऑफ मैलिक एसिड इट इज रीचिंग द एग. तो इसको क्या बोलेंगे? केमोटैक्टिक और केमोटैक्सिस. ठीक है, तो वो मूवमेंट जो होता है. फिर फोटोटैक्टिक भी होता है. फोटोटैक्टिक मतलब जहां पर लाइट है उस साइड में जाएगा, या जहां पर लाइट नहीं है उस साइड में जाएगा. तो फोटोटैक्सिस, फोटोटैक्टिक और फोटोटैक्सिस, ये दो पॉइंट हो गया. तो केमोटैक्टिक, केमोटैक्सिस, फोटोटैक्टिक, फोटोटैक्सिस. इस टाइप का थर्मोटैक्टिक भी होता है. थर्मोटैक्टिक, अगर जहां पर हाई टेम्परेचर होगा यहाँ पर जाएगा तो पॉजिटिवली थर्मोटैक्टिक. अगर लो टेम्परेचर के साइड में जाएगा तो इसको क्या बोलेंगे? नेगेटिवली थर्मोटैक्टिक. अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो न्यूट्रल है. ओके, इंडिपेंडेंट ऑफ लाइट, इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, इंडिपेंडेंट ऑफ केमिकल्स भी हो सकता है. ठीक है, तो केमोटैक्टिक, फोटोटैक्टिक, थर्मोटैक्टिक, इस टाइप. सर, सर इंडिपेंडेंट ऑफ केमिकल होने से वो इंड्यूस्ड हुआ? इंडिपेंडेंट केमिकल जरूरी नहीं है, और कुछ चाहिए उसको. सपोज लाइट हो सकता है, केमिकल्स नहीं हो सकता है, तो उस टाइम में क्या बोलेंगे? केमिकल्स के हिसाब से इंडिपेंडेंट. समझ में आ रहा है? यस सर. तो कभी टेम्परेचर के कारण भी हो सकता है. इवन इफ केमिकल्स, खाना अच्छा है बट इतना गर्मी है कि आप उसको छोड़ के आगे चले गए. ओके, एक एरिया में खाना अच्छा मिला था होटल में, मोटेल में, बट आप फिर भी आप एसी होटल में चले गए क्योंकि गर्मी है. कौन रहेगा इतना गर्मी में? अच्छा खाना मिलेगा तो क्या है, इस टाइप का. तो यहाँ पर आ जाइए ग्रोथ मूवमेंट. ये फिर दो टाइप का होता है. अगेन ये स्पॉन्टेनियस भी हो सकता है, इंड्यूस्ड भी हो सकता है, पैराटोनिक भी हो सकता है. लिख लो, एस फॉर स्पॉन्टेनियस, इट इज आल्सो कॉल्ड ऑटोनोमस, ऑटोनोमिक. इंग्लिश को पैराटोनिक बोलते हैं ना, पी. तो स्पॉन्टेनियस लिख लो पूरा, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे. वेरिएशन भी ऐसा होता है, स्पॉन्टेनियस भी हो सकता है और पैराटोनिक भी हो सकता है, या इंड्यूस्ड भी बोलते हैं. इसको ऑटोनोमस भी बोलते हैं, इसको इंड्यूस बोलते हैं. ऑटोनोमस बोलते हैं, इसको इंड्यूस बोलते हैं. ओके, तो बहुत ज्यादा ग्रोथ मूवमेंट जो होता है, ओके, बहुत ज्यादा जो ग्रोथ मूवमेंट होता है स्पॉन्टेनियस का, उसके बारे में मैं एक दो लाइन लिख लेता हूँ, आपको इजी होगा. एपिनास्टी, upward surface is showing more growth. Hyponasty, lower surface is showing more growth. Circumnutation, circumnutation क्या है? It is a coiling. The teeth, the inner part is, I'll show you, the inner part is showing less growth and outer part is showing more growth. Circumnutation. Suppose this is the substratum. इस coiling के लिए आपको किस टाइप का ग्रोथ चाहिए? इनर पार्ट ज्यादा ग्रोथ दिखाएगा या आउटर पार्ट ज्यादा ग्रोथ दिखाएगा? कॉइलिंग के लिए इनर कम ग्रोथ दिखाएगा, बाहर ज्यादा ग्रोथ, तभी तो कॉइलिंग होगा ना. तो दैट इज कॉल्ड सर्कमनुटेशन. ठीक है, ये सब मूवमेंट होता है. ओके, ग्रोथ मूवमेंट होता है, पैराटोनिक ग्रोथ मूवमेंट होता है.
ये स्पॉन्टेनियस। पैराटोनिक बहुत सारे होते हैं, जैसे आपका 1 फोटोट्रोपिक, फोटोट्रोपिज्म, जियोट्रोपिज्म, ग्रोथ होता है कि नहीं, जियोट्रोपिज्म, फोटोट्रोपिक, जियोट्रोपिक, केमोट्रोपिक। केमोट्रोपिक होता है, कहां पर होता है केमोट्रोपिज्म? फ्लावर, पोलन ट्यूब में। पोलन ट्यूब। वो केमोट्रोपिक है। फ्लावर फोटोट्रोपिक है। महक, यू आर करेक्ट फॉर फ्लावर फोटोट्रोपिक है। ओके, कैन आई से फोटोट्रोपिज्म एज हेलियोट्रोपिज्म? कैन आई से हेलियो? हेलियो मतलब रिलेटेड टू सनलाइट। ओके, ये भी होता है ना रिलेटेड टू, तो हेलियोट्रोपिज्म आल्सो आई कैन से। तो केमोट्रोपिज्म, फोटोट्रोपिज्म, जियोट्रोपिज्म, इस टाइप का मूवमेंट होता है। ठीक है, ये जो आपने नहीं लिखा, जो नेक्स्ट पार्ट उस साइड में, उसको भी हम थोड़ा लिखेंगे। आप इसको सेपरेटली लिख लो, अगर आपका स्पेस है तो वहां पर लिखो। तो हम यहाँ से लिखेंगे, इसके नीचे नीचे लिखेंगे। आप नीचे एक लाइन खींच लो। ओके, इससे करके नीचे लाइन खींच लो, फिर और एक खींच लो नीचे एक लाइन। अभी हैव यू रिटन? यस सर। तो यहाँ पर देखो वेरिएशन मूवमेंट में कैसे होगा। ये कौन सा मूवमेंट था? कर्वेचर मूवमेंट था, फिर वेरिएशन मूवमेंट था, फिर ऑटोनोमस था। उसका कुछ नाम नहीं है, ये एक ही मूवमेंट है। इंडियन, उसका एग्जाम्पल लिख लो, इंडियन टेलीग्राफ प्लांट, उसका नाम है डेस्मोडियम, डेस्मोडियम गाइडेंस। एक ही प्लांट है और कुछ नहीं, उसका नाम ही नहीं है। ऑटोनोमस, वेरिएशन, कर्वेचरल मूवमेंट। ये जो वेरिएशन मूवमेंट है, इसका बहुत सारे टाइप का होता है। इसमें 1 सिज्मोनास्टी मालूम है? शॉक मूवमेंट। ओके, सिज्मोनास्टी आपको मालूम है? सिज्मोनास्टी शॉक मूवमेंट होता है, लिख लो सिज्मोनास्टी। सिज्मोनास्टी क्या होता है बताओ? शॉक। शॉक मूवमेंट। इस टाइप का और एक मूवमेंट होता है थिग्मोनास्टी। थिग्मोनास्टी क्या है? टॉर्च है। और एक मूवमेंट होता है टॉर्च मूवमेंट होता है। फिर और एक मूवमेंट होता है, उसका नाम है निक्टिनास्टी। उसका नाम क्या है? निक्टिनास्टी। निक्टिनास्टी मूवमेंट इज देयर। ओके, तो ये 3 लिख लो, तो आपको एक नॉर्मल आइडिया हो गया किस टाइप का। शॉक मूवमेंट माने कोन? टच मी Plant नॉट, कुछ- टच मी नॉट प्लांट इज शोइंग शॉक मूवमेंट। टच मी नॉट प्लांट। Out touch, थिग्मोनास्टी। थिग्मोनास्टी जो आपका इंसेक्टिवरस प्लांट्स होते हैं ना, वो क्लोज हो जाता है। जब इंसेक्ट टच करता है तो दे आर बिकमिंग क्लोज्ड, तो वो होता है। Yes, आप टच नॉट प्लांट को जैसे भी टच कर लो, उसको टच नहीं लगेगा, उसको शॉक लगेगा। ओके, समझ में आ रहा है? yes sir. सपोज somebody is coming and आप उसको पीछे से टच कर दिया, बस उसका हार्ट फेल हो गया, उसका मतलब शॉक है या टच है? शॉक। Shock. हाँ, तो he or she was shocked. He was not prepared. Okay, so, she was not prepared. तो उस टाइप का वीक हार्ट जिनका होता है, उनको इससे नहीं करना चाहिए। ओके, समझ में आ रहा है? कभी कभी वीक हार्ट होते हैं ना, तो डोंट डू। तो उन लोग का हार्ट फेल हो जाएगा तो यू विल बी रेस्पॉन्सिबल। समझ में आ रहा है? तो डोंट डू एनीथिंग, क्योंकि उनका हार्ट को प्रॉब्लम होगा। तो ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। सर निक्टिनास्टी मैंने निक्टिनास्टी में बताऊंगा, पहले क्लासिफिकेशन। स्लीपिंग मूवमेंट बोलते हैं निक्टिनास्टी। कंप्लीट हुआ क्या, ये कंप्लीट करो पहले।
लिख लिया? Yes, sir. यस सर। आप आपका कॉपी में है, मेरे पास नहीं है, फिर उसके बाद मैं बताऊंगा आपको। ओके, आपका कॉपी में है और हम लोग यहाँ पर कुछ बताएंगे, आप कॉपी को देख के बताना मुझे क्या है ये। ओके, इसको मैं थोड़ा ठीक कर देता हूँ, नहीं तो थोड़ा खराब दिखता है। मैं कैसे अरेंज नहीं कर पाता हूँ, बट फिर भी चलता है। अरेंज नहीं करते, कुछ भी नहीं करते बच्चे तो फिर भी चलता है। ठीक है, हम लोग कुछ नहीं करते फिर भी चल रहा है सब कुछ। और ये आपका कार फेस्टिवल कैंसिल हो गया शायद, नहीं? Yes, Yes, sir. sir. दुखी हो? No, Yes, sir. sir. यस सर। हाँ, एक्चुअली एडवोकेट जो था ना वीक था, दैट एडवोकेट वाज वीक। एंड सेकंड पॉइंट, अगर यहाँ पर अलाउ करेंगे और कहीं पर भी अलाउ, 10 लाख सेग्रीगेशन होता है ना, शायद कोई रिवॉल्यूशन होगा, कोई आदमी जबरदस्ती बोलेगा हम देखेंगे या फेस्टिवल में शामिल नहीं। Yes, sir. और यहाँ पर एक एडवोकेट माने और भी इंटेलिजेंट, वो क्या बोल रहे हैं मालूम है? इतना चालाक एडवोकेट बोले कि द कार फेस्टिवल वाज कैंसल्ड but the pulling of car was not cancelled by Mercedes. The festival was cancelled, no individual will go. तो ये भी होता है कभी कभी, जैसे कहते हैं नहीं, nobody is allowed to move in horse. घोड़ा में कोई नहीं जाएगा, तो घोड़ी में जा सकता है कोई, इस टाइप का पागल टाइप के। ओके, वो ऐसे नहीं होगा, कैंसिल। और अगर एक बार कैंसिल होगा, यू बी सरप्राइज्ड। एक लाइन है, अगर एक बार कैंसिल होगा तो 6 इयर्स तक कैंसिल होगा। उसका मतलब है 6 इयर तक कोरोना शायद रहेगा। समझ में आ रहा है? ये फ्यूचर फोरकास्ट है। और एक बार कार फेस्टिवल कैंसिल होगा तो 6 साल तक कैसे कैंसिल होने का चांस है, और 5 इयर्स। तो दैट इज वेरी डेंजरस। अगर ये कैंसिल नहीं होता तो ज्यादा अच्छा होता। यहाँ पर आ Yes, sir. ग्रोथ मूवमेंट is reversible or irreversible? Irreversible. हाँ, लिख लो, ग्रोथ मूवमेंट इज irreversible. Variation movement is Reversible. Reversible. very good. Variation movement is reversible. तो दो पॉइंट मिल गया हम लोग को, ग्रोथ का बारे में हो गया और वेरिएशन बारे में हो गया। ऑटोनोमस भी हो गया, स्पॉन्टेनियस भी हो गया, इंड्यूस्ड भी हो गया, पैराटोनिक भी हो गया, बताया था पहले। ओके, फिर उसके आगे चलिए। एक होता है कर्वेचर मूवमेंट। कर्वेचर मूवमेंट का मतलब क्या है? एंटर प्लांट और द ऑर्गन, Organ. or part is showing the movement. The curvature movement भी हो गया, and movement of locomotion. Movement of locomotion का मतलब है entire structure shows movement. Maybe the entire plant, or the entire cell, or the bacterium. The entire structure shows the movement. So that is called curvature movement. Movement of locomotion. Sorry, movement of locomotion means entire structure, the entire organism. Structure of the organism, or the flagellated cell, or the gamete, ये पार्ट भी हो गया। वाइटल का मतलब क्या है? इम्पोर्टेंट। Yes, living related to living movement means एटीपी खर्च होगा। ओके, वाइटल मतलब लिविंग रिलेटेड टू लाइफ, तो एटीपी खर्च होगा, एटीपी चाहिए। डेड सेल वॉल अगर पानी ले लेगा वो वाइटल नहीं है, ठीक है, बट एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज ए वाइटल मूवमेंट। आई टोल्ड यू अर्लियर आल्सो। ओके, और एक पॉइंट लिखो। नाउ हमने बताया था आपको नास्टिक मूवमेंट।
and trophic movement. There are two words I told. One is nastic, one is trophic. तो नास्टिक मूवमेंट क्या है? आर्यन क्या है नास्टिक मूवमेंट? The direction movement. The direction of movement and direction of stimulus are independent. They are not connected. They are not connected. आर्यन समझ में आ गया? ट्रोपिक में they are connected, dependent or connected. जिस साइड से स्टिमुलस आएगा उस साइड से इधर पॉजिटिव और ऑपोजिट नेगेटिव में मूव करेगा. ठीक है, तो अगर इस टाइप का होता है तो उसको ट्रोपिक बोलते हैं. ट्रोपिक बोल सकते हो, इवन आप उसका टैक्टिक भी बोल सकते हो, वो भी कनेक्टेड है. ट्रोपिक भी कनेक्टेड है, टैक्टिक भी कनेक्टेड है. तो आप ट्रोपिक या टैक्टिक जो भी हो, ये कनेक्टेड होता है. जिस साइड में स्टिमुलस होता है उस साइड में. अगर वो कनेक्टेड नहीं होता है, टॉर्च किस साइड से आपने की और वो काम किस साइड में किया, इट इज नॉट कनेक्टेड, तो अभी वो डिफरेंट होगा. सर सनफ्लावर. हाँ, कहीं पर आप टॉर्च किस साइड में किए और काम किस साइड से हुआ, तो दोनों डिफरेंट हुआ कि नहीं? सर सनफ्लावर में तो होता है. सनफ्लावर तो मूव करता है ना लाइट के साइड में. हेलो, Yes, sir. सर होगा या टैक्टिक होगा, जो भी है वो उसके बारे में बात करेंगे. ठीक है, सनफ्लावर ट्रोपिक होता है या टैक्टिक होता है? वेरिएशन मूवमेंट होता है. सनफ्लावर वेरिएशन मूवमेंट होता है, दैट इज डिफरेंट थिंग. सनफ्लावर तो पूरा नहीं जाएगा, वो ऑर्गेन है, तो क्या होगा उसका? टैक्टिक होगा. ओके, या नास्टिक होगा. तो आपको लाइट के साइड में अगर रहेगा तो ट्रोपिक होगा, बट ग्रोथ तो नहीं होता है, तो वेरिएशन मूवमेंट होता है. तो वेरिएशन मूवमेंट एंड डायरेक्शन होता है. तो फोटो ट्रोपिक बोलना पड़ेगा उसको. ग्रोथ नहीं होता है, तो वेरिएशन मूवमेंट होता है. तो नास्टिक मूवमेंट में भी ग्रोथ मूवमेंट, में भी वेरिएशन मूवमेंट, but tropic movement is only growth movement. Tactic is not growth movement. Okay, tactic is not a growth movement. Tropic is a growth movement. तो tactic बोलने से चलेगा. Okay, और तो tactic बोलने से भी चलेगा. सनफ्लावर का उसके बाद बोलिए. Now can you define one movement? Any one movement आप बताइए मुझे. जैसे केमोटैक्टिक के बारे में थोड़ा बताइए. व्हाट इज केमोटैक्टिक मूवमेंट? क्विकली, व्हाट डू यू मीन बाय केमोटैक्टिक मूवमेंट? हेलो, मैं कीवर्ड्स बनाता हूं एंड यू जस्ट चेक इट आउट वेदर इट इज करेक्ट और नॉट. केमोटैक्टिक इज ए मूवमेंट of locomotion or not? Yes, sir. It is a movement of locomotion. It is a vital movement of locomotion or not? Vital. Yes, sir. It is a vital movement of locomotion. समझ में आ रहा है? It is a vital movement of locomotion. फिर उसके बाद आप बोलिए. It is a paratonic movement or not? Yes, Induced. sir. Paratonic movement, induced movement. By chemicals or not? Yes, sir. By chemicals. यहाँ तक बनाओ. Now the next point. Some examples you write. One example is flagellated antherozoids, मतलब male gametes.
of mass chemotactic दिखाता है, and that chemotactic is due to gas, due to sugar or malic acid, any of you. Flagellated Malic acid. Malic acid. मॉस है, मॉस ब्रायोफाइट से Oh, sugar. शुगर. अगर टेरिडोफाइट्स फॉर्म होता और एक लिख लो, फ्लैजेलेटेड एंथेरोजॉइड्स ऑफ फॉर्म्स टेरिडोफाइट्स का सब नहीं, ड्यू टू ऑर्गेनिक एसिड. कैन यू नेम द ऑर्गेनिक एसिड? मालिक एसिड. ये दो क्वेश्चंस वेरी इंपॉर्टेंट. 4 क्वेश्चंस बनाएंगे, ये 2 इंपॉर्टेंट है और 2 बना रहे हैं. कंप्लीट हो गया. ये रिवर्सेबल है या इरिवर्सेबल है? मोनालिसा, रिवर्सेबल और इरिवर्सेबल? टैक्टिक. Reverse. यस, रिवर्सेबल. जहां पर गया फिर वहां से वापस भी आ पाएगा, इसलिए ये रिवर्सेबल है. नाउ यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर और एक पॉइंट में लिख लिया, रिवर्सेबल. अगर उसका काम हो जाएगा तो रिवर्सेबल का मतलब कुछ नहीं, बट वो वापस भी आ सकता है. मूवमेंट के बारे में बोल रहा हूँ. अगर वो फर्टिलाइजेशन कर लिया तो रिवर्सेबल कैसे होगा? बट वो अगर गया फिर वापस भी आ सकता है, और जहां पर केमिकल्स मिलेगा वहां पर जाओ. नाउ यू राइट केमोट्रोपिक मूवमेंट. इसके लिए जॉय आप थोड़ा ढूंढो तो आपका जो लिखा था मैं कहां पर है. इज इट वाइटल और नॉट? इज इट वाइटल और नॉट? जॉय, इट इज वाइटल. सेकेंड, इट इज मूवमेंट ऑफ लोकोमोशन और मूवमेंट ऑफ कर्वेचर. Locomotion. Locomotion. देख के बताओ ठीक से. Yes. Yes sir, Yes, locomotion. sir. Carbohydrate. टैक्टिक नहीं, ऊपर तो खत्म किया ना टैक्टिक. टैक्सिस और Sir. हाँ. Sir, tactic टा movement of curvature ଲେଖା ହେଇଛି. नहीं मो फास्ट कौन लिखा ହେଇଥିଲା? बाँ पट्टा कौन लिखा ହେଇଛି? मूवमेंट ऑफ लोकोमोशन लिखा ହେଇଥିଲା ना कर्वेचर लिखा ହେଇଥିଲା? लेफ्ट साइड locomotion. Locomotion लिखा है जी. हाँ, and right side जोटा लिखा ହେଇଛି ସେଟା मूवमेंट ऑफ कर्वेचर. Yes sir. Chemotropic. मूवमेंट ऑफ कर्वेचर रे केमोट्रोपिक लिखा ହେଇଛି कि नहीं? Yes sir. Yes sir. ତାହେଲେ କେମୋଟ୍ରୋपिक ଟା କୋଉ ସାଇड ଲେଖା ହେଇଛି? हेलो. Moment of curvature. Movement of curvature. So it's a vital movement and it is also movement of curvature. Tropic, अब concentrate ठीक से कीजिए. Tropic and tactic are different. तो फिर आप बताइए मुझे, it's a growth movement or it is a variation movement? Yes, it is a growth movement. अगर ग्रोथ मूवमेंट होगा तो इरिवर्सिबल होगा या रिवर्सिबल होगा? Irreversible. Irreversible. Yes, it is the irreversible. It is a paratonic movement or it is spontaneous movement. It is induced movement or spontaneous? Paratonic. हाँ, तो paratonic हो गया, means induced. Induced by gas, chemicals. Induced by dash, induced by chemicals. हो गया. तो केमोट्रोपिक मूवमेंट का एक एग्जांपल मुझे बताओ. पोलन ट्यूब, मानीश्री, पोलन ट्यूब केमोट्रोपिक मूवमेंट दिखाता है. और कैन यू नेम द केमिकल्स? एनी ऑफ यू हु कैन नेम द केमिकल्स? पास्ता केमिकल क्या होगा? पोलन ट्यूब किस कारण जाता है एक के पास? Malic acid. No, it is not the pteridophytes or forms. Residue substance. पोलन ट्यूब कैसे जाता है? Sugar. बोरॉन और कैल्शियम. तो मैं बताया था आपको, शुगर कॉम्प्लेक्स होता है बट कैल्शियम सबसे इंपॉर्टेंट है.
उसके बाद बोरन, उसके बाद शुगर कॉम्प्लेक्स, उसका नाम है इनसॉल्वेबल। वाला पहला नंबर आएगा कैल्शियम। पोलन ट्यूब मूव्स टुवर्ड्स द egg apparatus because of calcium. Okay, so those are in second year, they should understand calcium. So this is reversible or irreversible? Irreversible, वापस नहीं आएगा। ग्रोथ मूवमेंट है ना, वापस नहीं आएगा। ये समझ में आ गया आपको? यस सर। उसके बाद और एक पढ़िए, एपिनास्टी क्या है? ये देखो, एक लीफ है, लीफ का अपर सरफेस सोज, लीफ का अपर सरफेस सोज मोर ग्रोथ। या फ्लावर का, सपोज दिस इज द फ्लावर, द पेटल्स आर शोइंग मोर ग्रोथ, अपर सरफेस, सपोज दिस इज द फ्लावर। So how it will open? Because of epinasty. Upper surface shows more growth. ये तो literally हो गया। Which hormone is inducing? You know, you'll be surprised. The growth inhibiting hormone induces epinasty. It is important for anthesis or not? Flower formation is called what? Flower formation is called what? Anthesis. लिख लो, flower formation is anthesis. बस हो गया। It is reversible or irreversible? irreversible, Yes, it is nastic. Why nastic? Only इस टाइप का, जहां से भी जो भी हो ओपन, उसका कुछ रूल नहीं है, उसका डिफरेंट ऐसे जिगजैग नहीं होगा, उसका ओपनिंग ओनली होगा। तो इट इज रिवर्सिबल। इट्स ए ग्रोथ मूवमेंट, इट्स ए ग्रोथ मूवमेंट के अंदर है। देखो यहाँ पर लिखे आप, इट इज इरिवर्सिबल। अगर ये नास्टिक होता, जैसे हम लोग बताए थे बुल्लीफॉर्म सेल्स, टर्गर चेंज, नास्टिक एंड टर्गर चेंज होता है। टर्गर चेंज वेरिएशन मूवमेंट अगर होता तो ये रिवर्सेबल होता, बट ये इरिवर्सेबल है। ठीक है, और एक पॉइंट भी होगा इसका, इट इज ऑटोनोमस। ओके, इट इज स्पॉन्टेनियस और ऑटोनोमस। स्पॉन्टेनियस है, इट इज वाइटल, वाइटल भी है। इट इज मूवमेंट ऑफ लोकोमोशन और मूवमेंट ऑफ कर्वेचर। मोनालिसा, कर्वेचर। हाँ, अब ठीक लिखे ना, ठीक से लिखो, मूवमेंट ऑफ कर्वेचर। बस हो गया ये। एपिनास्टी समझ में आ गया। हाइपोनास्टी भी उस टाइप का होता है, लोअर सरफेस शोज मोर ग्रोथ, इज कॉल्ड हाइपोनास्टी। ना आपको मैंने एक वर्ड बताया था, सबकम नोटेशन, उसके अंदर देखो सबकम नोटेशन, ये सबस्ट्रेटम है और इसके चारों तरफ ट्विनर हैज टू मूव। तो इनर सरफेस शोज मोर ग्रोथ और आउटर सरफेस शोज मोर ग्रोथ। outer surface, आउटर। यस, तो ये सबकम नोटेशन होता है। इनर सरफेस शोज लेस ग्रोथ देन आउटर सरफेस। तो यहां पर लिखिए कॉइलिंग ऑर्गन्स, एनी कॉइलिंग ऑर्गन्स आर शोइंग सबकम नोटेशन। तो आपको एक क्वेश्चन माइंड में क्वेश्चन आएगा कि सिलियरी मूवमेंट स्पॉन्टेनियस है या इंड्यूस्ड है? सिलियरी मूवमेंट स्पॉन्टेनियस है और इंड्यूस्ड है, बताओ। spontaneous, हाँ, यस। सपोज आप एक कार लेके इससे घूम रहे हो तो वो
स्पॉन्टेनियस होता है. You have not decided where to go, but suppose you are picking any vehicle for specific purpose. जैसे आप जाना चाहते हो स्कूल, तभी वो स्पॉन्टेनियस नहीं होगा, वो इंड्यूस्ड होगा. ठीक है, सिलियरी है बट इंड्यूस्ड है. जैसे हम लोग बोले थे flagellated antherozoids or gamete moves towards the egg in mosses because of sugar and in fawns because of malic acid. ठीक है, सर लास्ट पार्टी रेस କରନ୍ତୁ କି ମୁଁ ଲେଖୁଛି. हाँ लिख रखी मैं जानी चाहिए कैसे लिखते हो ना. तो क्वेश्चन इज हम लोग पहले सिलियरी खत्म किया. ठीक है, जब उसका ऐसे घूम रहा है, कहीं पर खाना मिलेगा क्या मिलेगा उसको कुछ मालूम नहीं, ऐसे घूम रहा है, तो फिर हम लोग उसके नीचे जो था अमोइबॉइड मालूम है, अमोइबा में अमोइबॉइड हुए ना. यस सर. यस सर. अंदर है तो उसको हटा दीजिए, वो अपने आप हो जाएगा. अमोइबॉइड इज ए लोकोमोशन, मूवमेंट ऑफ लोकोमोशन, बट साइक्लोसिस इंपॉर्टेंट है. ओके, तो साइक्लोसिस का थोड़ा लिखो. साइक्लोसिस, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, discovered by Amici. It is two types: rotational cyclosis and circulation. Rotation cyclosis and circulation, ब्लड सर्कुलेशन जैसा होता है. रोटेशनल साइक्लोसिस आप ऐसे वैक्यूल बना लीजिए और एक ही डायरेक्शन में मूव करता है वैक्यूल का, आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज. क्लॉकवाइज होगा और एंटी क्लॉकवाइज होगा और कुछ नहीं. इट इज रोटेशन. ये भी रिवर्स भी हो सकता है बट सर्कुलेशन ऐसे नहीं होता है. यहाँ पर बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स है, तो कहीं पर इस टाइप का, कहीं पर इस टाइप का, कहीं पर यहाँ हाफ, फिर रिवर्स हो जाता है, कुछ भी हो सकता है. तो इधर और नहीं होगा. एंड ये क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज दोनों ये होता है. तो अगर प्रोटोप्लाज्म, it is the movement of cytoplasm around vacuole or around the organelles. समझ में आ रहा है? Around the vacuoles or around the organelles. What is the benefit? Why cyclosis is there? Because intracellular compartments प्रोकैरियोटिक में होता है या यूकैरियोटिक में होता है? यूकैरियोटिक. यस. तो डिस्ट्रीब्यूशन, व्हाट इज द बेनिफिट? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस. व्हाट इज द बेनिफिट? एंड हीट. Distribution of resources and heat, that is the benefit of cyclosis or cytoplasmic streaming. ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? सर हीट कैसे? हीट भी होता है ना, हीट कैरी करेगा कि नहीं, थोड़ा थोड़ा हीट कैरी करेगा कि नहीं. अरे साइटोप्लाज्म थोड़ा सा हीट लेकर जाएगा कि नहीं. अरे हीट कहाँ पर रहता है? साइटोप्लाज्म के अंदर भी तो थोड़ा हीट, टेम्परेचर, पीएच, ये सब होम्योस्टैसिस बैलेंस चाहिए कि नहीं, स्टेडीनेस. यस सर. थोड़ा थोड़ा हीट भी डिस्ट्रीब्यूट हो. कोई भी चीज हीट, पानी हीट लेकर जाता है कि नहीं? पानी भी हीट तो लेकर जाता है. सपोज आप गर्म पानी किसी में डाल दोगे
तो उसका जो हीट वो कोल्ड वाटर को भी थोड़ा हॉट बना देता है, वार्म वाटर बना देता है। ओके, तो हीट होता है ना, लिक्विड कैन टेक हीट। सर रोहन तो दे कंप्लीट करके ठीक আছে, তো এসব কাই বেশি কথা ହେଇନଥିଲା ତ ମୁଁ ଭାବିଲି ଏସବୁ ଆସିଛି କି ନାହିଁ, ଆସିଥିବ। ହେଲା यस ऑलमोस्ट ओवर आर्यन, ऑलमोस्ट। तो हम लोग फर्स्ट पार्ट खत्म कर दिया क्या, जो सर्कुलेशन सिलियरी आमरपेड। सेकेंड पार्ट भी खत्म कर दिया, केमोटैक्टिक, फोटोटैक्टिक और क्या है जय, और क्या है, केमोटैक्टिक, फोटोटैक्टिक, थर्मोटैक्टिक। तो बैक्टीरिया इधर उधर मूव करते हैं, माइक्रोब्स इधर उधर मूव करते हैं। ओके, एंड फ्लैजिलेटेड गैमेट्स दे कैन मूव। उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या खत्म किया उस साइड में, द मूवमेंट ऑफ कर्वेचर, द वेरिएशन मूवमेंट ऑफ कर्वेचर शायद खत्म किया। ओके, या ग्रोथ, पहले ग्रोथ खत्म किया, एफिनेस्टी खत्म किया, फिर हाइपोनेस्टी खत्म किया, फिर सर्कमनेटेशन खत्म किया, फिर हमने केमोट्रोपिक खत्म किया। देखो केमोट्रोपिक खत्म हो गया, फोटोट्रोपिक है एंड जियोट्रोपिक है। तो फोटोट्रोपिक क्या है बताओ मुझे। फंगल माइसेलियम, अगर वो मूव करता है फंगल माइसेलियम तो उसको क्या बोलेंगे, फंगल माइसेलियम। अगर खाने के साइड में मूव करता है महक, उसको क्या बोलेंगे, फंगल माइसेलियम। फंगल माइसेलियम। अगर वो मूव करता है उस मूवमेंट को क्या बोलेंगे, केमोटैक्टिक और केमोट्रोपिक। कुछ भी बोलो चलेगा। केमोटैक्टिक। वो ग्रोथ मूवमेंट होता है कि नहीं, हाँ, तो ग्रोथ मूवमेंट होगा तो केमोटैक्टिक होगा या केमोट्रोपिक होगा। ठीक होगा। हाँ, यस, एक्सटेंशन इज एंटरिंग। वो खुद एंटर नहीं कर रहा है, उसका एक्सटेंशन इज एंटरिंग, उसका ग्रोथ होता रहेगा। तो पोलन ट्यूब जैसा है, तो क्या बोलेंगे उसको, केमोट्रॉपिक। हाँ यस। तो आपको 3 चीज याद करना है, केमोटैक्टिक का 2, केमोट्रोपिक का 2, है। तो सत्य गेले हे जो तापर पॉइंट बस। तो ये देखो इस टाइप का एक रूट, रूट को क्या बोलेंगे, ये सॉइल है। ये पॉजिटिवली क्या होगा, जियोट्रोपिक। लिखो, जो टुवर्ड सॉइल जो जाता है उसको क्या बोलेंगे, पॉजिटिवली जियोट्रोपिक। अगर ये ऐसा होता है, ओब्लिकली प्लेस्ड होता है, तो उसको क्या बोलेंगे, कभी कभी रूट इस टाइप का होता है ना, सेकेंडरी रूट, जियोट्रोपिक, ओब्लिक, ओब्लिक टू द ग्रेविटी। अगर ऐसा होता है तो डायोजियोट्रोपिक, जो 90 डिग्री होता है। ओके, ग्रेविटी के साथ क्या होता है, 90 डिग्री, तो डायाजियोट्रोपिक, जियोट्रोपिक, प्लाजियोट्रोपिक, डायाजियोट्रोपिक। हैव रिटन। ये सॉइल होता है, ये क्या होता है, ये सॉइल होता है। अरे ये सब होता है। अगर बाई चांस कुछ रूट अगर ये इस टाइप का हो जाते हैं, रूट, तो उसको क्या बोलेंगे, नेगेटिवली जियोट्रोपिक। जियोट्रोपिक। न्यूमाटोफोर्स मालूम है, न्यूमाटोफोर्स, अरे न्यूमाटोफोर्स, यस, हालोफाइट्स मार्सी एरिया में होता है। वो क्या होता है, नेगेटिवली जियोट्रोपिक। बस ये हो गया आपका।
और ये देखोगे, इसके बारे में देखते हैं। ये आपका लीफ है, लाइट ऐसा आता है कि नहीं? Yes, sir. Now the leaf is heliotropic or diheliotropic? Diheliotropic. आया हेलियोट्रोपिक। Yes. डाया फोटोट्रोपिक भी बोल पाओगे, हेलियोट्रोपिक भी बोल पाओगे। ठीक है, हो गया ये। और ज्यादातर लीफ उस टाइप का होता है, ओब्लिकली मोनोकोट लीफ होता है। ओके, तो प्लाहेलियोट्रोपिक बोल पाओगे, प्लाहेलियोट्रोपिक। मोनोकोट लीफ कैसे होता है मालूम है ना? इस टाइप का होता है मोनोकोट लीफ। राइस का देखना, इस टाइप का होता है कि नहीं? मोनोकोट लीफ इस टाइप का। तो इसको हम क्या बोलेंगे? इस टाइप का लीफ को, मोनोकोट लीफ को। प्लाहेलियोट्रोपिक। यस, मोनोकोट लीफ को। जैसे यहाँ पर हमने बनाया था ला हेलियोट्रोपिक, वर्ड थोड़ा सुंदर लगता है। ओके, तो प्ला हेलियोट्रोपिक ऐसे कर लो, हो गया ये प्ला हेलियोट्रोपिक। बनाओ बनाओ। ये जो Yes, sir. व्हाट आई ऑब्जर्व, और एक पॉइंट में देखा, ये जो ऑनलाइन वाला जो क्लासेस होता है उसमें मैं एक पॉइंट देखा, मेनी टीचर्स दे आर वेरी फास्ट इन ऑनलाइन क्लासेस। यस सर। हाँ, दैट इज रॉन्ग, क्योंकि आप तो एक तो बच्चा दिख नहीं पाता है आपको ठीक से, एंड इफ यू आर वेरी वेरी फास्ट तो कैसे लिखेगा, कैसे विजुअलाइज करेगा, ये क्या सब्जेक्ट को मैंने आप ठीक से उसको कम्युनिकेशन गैप रहेगा। जो मुझे पहले ऋषभ ने पहले बताया कि अगर आप थोड़ा स्लो नहीं रहोगे तो दैट इज द ड्रॉबैक ऑफ ऑनलाइन क्लासेस। अगर आप क्लास ले रहे हो रैपिड हो तो बच्चों को समझ में आ जाएगा, क्योंकि दैट स्टूडेंट इज विजुअलाइजिंग इन मेनी वेज। तो ये एक माइनस है। और आई हैव सीन मेनी टीचर्स, वो एक चीज को 50 बार बोलते हैं। ओके, ये भी गलत है, बिकॉज सपोज बच्चे को दिखाई दे रहा है, समझ में आ रहा है, और आप बार बार 50 बार बोलोगे तो इट विल बी वेरी स्लो। यस सर। तो ये दोनों माइनस पॉइंट है ऑनलाइन का। तो ऑनलाइन में आप बार बार बोलेंगे, अरे समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, अरे एक एक पैराग्राफ में एक बार बोल लो चलेगा। तो आई एम ट्राइंग टू मेंटेन, बट मुझे पता नहीं, कोई कोई स्टूडेंट को वेरी फास्ट टीचिंग भी अच्छा लगता है तो उनके लिए शायद फास्ट टीचिंग अच्छा है, कोई कोई स्टूडेंट को स्लो टीचिंग भी अच्छा लगता है। ओके, वेरी स्लो भी किसी को भी अच्छा लगेगा, तो उस टाइप का। तो आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट, जो भी हो, अगर इस टाइप का हो उस टाइप का हो जाए, बट थोड़ा स्लो में हूँ कंपैरेटिवली। देखना मैं थोड़ा स्लो हूँ, सब्जेक्ट रैपिड में जाएगा आपको लगेगा मैं स्लो हूँ। कभी कभी सब्जेक्ट आई विल बी वेरी रैपिड बट सब्जेक्ट कम जाएगा, समझ में आए ना? हेलो, यस सर। तो ये एक स्टाइल है, उसको कैसे करते हैं क्या करते हैं मैं नहीं बताऊंगा। ट्रेड सीखते थे, कभी कभी आपको लगेगा अरे कितना फास्ट चल रहे, सब खत्म हो गया, बट मैं स्लो था। और कभी कभी मैं फास्ट जाऊंगा बट सब्जेक्ट स्लो जाएगा, माने चैप्टर का जो पार्ट होगा उससे, तो उसका इंफॉर्मेशन के हिसाब से डिपेंड करता है कितना इंफॉर्मेशन आप दे रहे हो, क्या दे रहे हो। तो ये हो गया कंप्लीटेड सब। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. So now we'll talk about only 2, then उसके बाद हो गया ये समझ में कंप्लीट हो जाएगा, 1 or 2 points only। ओके, तो उसके बाद हम क्वेश्चन देखेंगे। तो यहाँ पर एक रूट होता है कोरालॉइड रूट। कोरालॉइड रूट्स एक नाइट्रोजन फिक्सिंग होता है क्या कोरालॉइड रूट्स? यस सर। और कहाँ पर होता है? जिम्नोस्पर्म में होता है। और जिम्नोस्पर्म का कौन सा ग्रुप में होता है? साइकस में होता है या पाइनस में होता है? बताओ, जिम्नोस्पर्म का कौन सा ग्रुप में होता है, साइकस और पाइनस? कहाँ पर होता है कोरालॉइड रूट्स? पाइनस। नहीं, आप जो गए थे ना गांव जब गए थे ना रजोत्सव में मनाने के लिए, तभी आपका वो सब भूल गया, कंटिन्यूस हो गया। तो डोंट मूव, यू सेलिब्रेट इन भुवनेश्वर। ओके, तो ठीक है, जो नो प्रॉब्लम। तो कोरालॉइड रूट्स
reported in cycas. Mycorrhiza root is reported in thymus. Mycorrhiza root is reported in thymus. तो कोरालॉइड रूट्स किस तरह का होता है मालूम है? ये ऊपर आता है फिर नीचे जाता है, फिर ऊपर आता है फिर नीचे जाता है, फिर ऊपर फिर नीचे, ऐसे जाते हैं. ओके, तो इसको क्या बोलेंगे? जियोट्रोपिक बोलेंगे या एजियोट्रोपिक बोलेंगे? ये डाइकोटोमसली ब्रांच्ड होते हैं. ओके, ये डाइकोटोमसली ब्रांच्ड होते हैं, ऐसे होते हैं. जो उसको हटा दो, पहले आप इसे यहाँ पर ऐसे कर लो. ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे? अगर ये ऊपर जा रहे नीचे जा रहे, जियोट्रोपिक बोलेंगे या नेगेटिवली जियोट्रोपिक बोलेंगे और एजियोट्रोपिक बोलेंगे? जियोट्रोपिक. यस यस, एजियोट्रोपिक है. बट एजियोट्रोपिक से और एक पॉइंट आ गया. एजियोट्रोपिक जो नॉट रिलेटेड होता है, बट ये अपोजियोट्रोपिक है, क्योंकि जिगजैग है ना, ऊपर आ रहा है नीचे जा रहे, ऊपर, तो उसका मतलब maybe something is connected. Suppose one person, unknown person, is roaming around your colony. आपके घर के सामने वो बार बार राउंड मार रहा है. Okay, and when you are when somebody is asking कि आप क्यों इधर घूम रहे हो इस टाइप का, बार बार 5 बार 10 बार 50 बार, he is saying, he say, I'm not connected to this, मैं ऐसे घूम रहा हूँ. ओके, तो तभी ये एजियोट्रोपिक लग रहा है. ठीक है, बट वो ना चोर था, तो तभी वो अपोजियोट्रोपिक है. समझे? एक्शन नहीं ले पाया, चोरी नहीं कर पाया, बट समथिंग इज देयर. ये ऊपर आ रहा है फिर नीचे जा रहा है, फिर ऊपर आ रहा है फिर, उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है अपोजियोट्रोपिक. तो अपोजियोट्रोपिक इज ए बेटर वर्ड. ठीक है, ऊपर आ रहे, some relationship is there. Okay, why it is roaming like this? Okay, so something is there. So apogeotropic. Maybe morning walk कर रहा है, whatever. Okay, apogeotropic. ये ज्यादा ageotropic you can say apogeotropic. वो complete हो गया आपका. Geotropic complete हो गया. Which hormone induces geotropism? Auxin. Yes, yes. Geotropism is induced by auxin as well as ABA, abscisic acid. You know, it is also preventing growth, and auxin also preventing growth in root, induces root, but prevents the growth. Therefore, both auxin as well as ABA together. बस यहाँ तक कंप्लीट हुआ. फिर आपका वो जो था निक्टिनास्टी. निक्टिनास्टी क्या था? इसको स्लीपिंग मूवमेंट बोलते हैं. लिखो, इट इज ऑल्सो कॉल्ड स्लीपिंग मूवमेंट. सपोज लीफ का ये एक्टिव पोजीशन है, या दिस वन इज द एक्टिव पोजीशन ऑफ लीफ. व्हिच वन इज द एक्टिव पोजीशन ऑफ लीफ? लेफ्ट साइड. लेफ्ट साइड. गुड. तो ये इसका स्लीपिंग मूवमेंट है. दिन में ऐसा हो जाएगा, रात को ऐसे हो जाएगा सपोज. तो दिस इज ड्यूरिंग डे टाइम एंड दिस इज ड्यूरिंग नाइट. तो जैसे नाइट में वो सो रहा है, और फ्लावर, सपोज फ्लावर ओपन हो रहा है डे टाइम में और रात को बंद हो रहा है, फिर ओपन हो रहा है फिर. तो जैसे सो रहा है, अगर इस टाइप का होगा तो उसका मतलब है इसको स्लीपिंग मूवमेंट बोलते हैं. नाउ स्लीपिंग मूवमेंट में भी किस कारण हुआ? लाइट के कारण, फोटोनास्टी. और कोई कोई बोलते हैं टेम्परेचर कारण भी होता है. तो टेम्परेचर के कारण होने से उसको क्या बोलेंगे? हार्मोनास्टी. तो रात ठंडा होता है या दिन ठंडा होता है कंपैरेटिवली? रात. और दिन में लाइट होता है, रात को लाइट नहीं होता है. तो उसका मतलब है फोटोनास्टी and thermonasty together, when we cannot differentiate it, then we may say nictinasty. Maybe temperature, maybe light, or maybe both. समझ में आ रहा है? यहाँ तक समझ में आया? मोनालिसा, you put that question. What is nictinasty? Sleeping. Yes, sir. वो फ्लावर रिलेटेड भी हो सकता है
टेम्परेचर रिलेटेड भी हो सकता है। फ्लावर का, सब फ्लावर का नहीं है, सब लीफ का नहीं है। ओके, फ्लावर रिलेटेड हो सकता है, लीफ रिलेटेड हो सकता है, टेम्परेचर रिलेटेड हो सकता है, लाइट रिलेटेड भी हो सकता है। तो नॉट ऑल द फ्लावर्स, आई एम नॉट सेइंग, नॉट ऑल द फ्लावर्स आई एम नॉट सेइंग। तो फिर आइए डेस्मोडियम, याद है डेस्मोडियम एक था, व्हाट टाइप ऑफ मूवमेंट डेस्मोडियम का? डेस्मोडियम का लीफ, आर्यन देखो किस टाइप का है, ये लीफ क्या होगा, ऊपर उठ जाएगा 90 डिग्री, फिर 180 डिग्री डाउन चला जाएगा, फिर 90 डिग्री ऑफ हो जाएगा। समझ में आ रहा है? 90 डिग्री ऑफ, 180 डिग्री डाउन, फिर 90 डिग्री ऑफ। समझ में आ रहा है? 90 डिग्री ऑफ, 180 डिग्री डाउन, फिर 90 डिग्री ऑफ। तो जिस पोजीशन में था उस पोजीशन में आ गया। लिपलेट्स, लिपलेट्स, छोटा छोटा लिपलेट्स। तो इसको कौन सा मूवमेंट हमने बताया था आपको? ग्रोथ मूवमेंट। इसको कौन सा मूवमेंट हम लोग बताए थे, याद है? ग्रोथ मूवमेंट और वेरिएशन मूवमेंट। वेरिएशन। वेरिएशन। यस, स्पॉन्टेनियस मूवमेंट और ऑटोनोमस मूवमेंट। जय, कौन सा मूवमेंट? स्पॉन्टेनियस। हाँ, स्पॉन्टेनियस मूवमेंट है, बट इट इज मूवमेंट और autonomous वेरिएशन। autonomous sir code स्पॉन्टेनियस, बट ग्रोथ मूवमेंट और वेरिएशन मूवमेंट। वेरिएशन। यस, वेरिएशन मूवमेंट। तो रिवर्सेबल है कि नहीं? देखो रिवर्स से variation जहाँ पर था वहीं पर आ गया, ठीक है। बस वो इसका कुछ ऑर्गेनिज्म का नाम, उसका मूवमेंट का नाम कुछ नहीं है, ऑर्गेनिज्म का नाम डायरेक्ट लिख लो, और उसका नाम है डेस्मोडियम इंडियन टेलीग्राफ प्लांट्स। इंडियन टेलीग्राफ प्लांट्स। तो हम लोग क्यों स्कैटर्ड बता रहे हैं, इधर से एक उधर से, कि कहीं पर जाइए, यू कैन राइट एंड यू कैन अंडरस्टैंड। सपोज फोटोट्रोपिज्म, हु कैन डिफाइन? डिफाइन करो फोटोट्रोपिज्म, एनी ऑफ यू। सर ग्रोथ मूवमेंट ड्यू टू लाइट। Of plants due to light. Yes. Towards light. Towards light. यस, इन दिस वे लाइट। तो मैं इससे बता रहा हूँ, आई यू जस्ट चेक इट आउट। इट इज द vital movement of curvature. It is the vital movement of curvature, vital growth movement of curvature induced by light. It is the vital irreversible growth movement of curvature induced by light. Correct? अरे ग्रोथ मूवमेंट इज इरिवर्सिबल ना? यस सर। हाँ, तो एमती तमे तैयारी कर दे परियो, मुझे वो ट्रिक्स बताई जी सेतरे। इट इज डायरेक्टिव और नॉन डायरेक्टिव? डायरेक्टिव। It is directive, means it is the direction of movement depends on the direction of लाइट। stimulus. Right. Correct. The direction of stimulus. Good. Seismonasty. आप उस पर लिख सकते हो, seismonasty. Vital movement of curvature. Okay. Vital movement of curvature. उसके बाद variation movement of curvature. It is variation movement or not? यस सर। The variation movement of curvature. Reversible or irreversible? रिवर्स। अरे कुछ टाइम के बाद टच मी नॉट प्लांट जैसा है ऐसा हो जाता है कि नहीं? यस सर। वेरिएशन होता है, उसका नाम क्या होता है? ये देखो, ऐसा होता है, फिर ऐसा होता है,
फिर यहाँ पर लिपलेट्स ऑफ इस टाइप का होता है। नहीं, टच मी नॉट मोर, छुई मुई क्या बोलते हैं, छुई मुई ना, लाजवंती, लाजोगोरी लता or something. उसको हिंदी में छुई मुई बोलते हैं। दिल्ली में एक सॉन्ग लिखा है कि सॉन्ग ना कुछ मिमोसा पुडी। यस यस, टच मी नॉट। स्मॉल होगा क्योंकि ये स्पीसीज है। और यहाँ पर इसका लिप बेस में, यहाँ पर लिप बेस इज सोलेन, सोलेन और पॉल्बिनस लिप बेस। जहां पर भी आप टच करो, it will droop down, it will droop down. There is a stimulus which is reaching. Many are thinking it has nervous system. Is it true? नो सर। There is no nervous system. तो किससे काम करता है? टर्गर चेंज, वेरिएशन चेंज, टर्गर चेंज के कारण। ओके, and which hormone is inducing all these things, you know? Auxin. And obviously potassium, टर्गर चेंज के लिए who is responsible, आपको याद है? पोटासियम। तो मैं आपको एक पॉइंट बता देता हूँ, इसको इरेक्ट बनाने के लिए, सेल एनलार्जमेंट के लिए which hormone is responsible? ये ड्रूप हो गया, फिर ये आएगा, फिर नॉर्मल हो जाएगा, तो सेल एनलार्जमेंट होता है। टर्गर चेंज के लिए which hormone is responsible? ऑक्सिन। तो सेल इलोंगेशन which hormone? Mainly auxin. But internodal elongation which hormone? स्मरणिका, इंटरनोडल इलोंगेशन, बोल्टिंग which hormone? साइटोकाइन। एक पागल, और एक बार बताओ। गिबरेलिन। हाँ, गिबरेलिन। ओके, जीए सेल डिवीजन नहीं, इंटरनोडल इलोंगेशन, जीए। महेक नथिला बोधे काली एटा सुबुची, मो वॉइस भलो सुबुची, हाई क्वालिटी सुबुची? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो सेल इलोंगेशन, ऑक्सिन, वाइटल, पोटेशियम दरकार सरला, एटा सरिला। तमे टच मी नॉट प्लांट को जाई कि नुची नुची छुईले भी तार जो टिपिकल मूवमेंट अछि सेटा से देखेइबो ना, तार अन्य किछि देखे दबो ना जाति बोले रखेबो। हाँ, तमे डायरेक्ट आसी छुओ कि नुची नुची छुओ, मोरे मार्क्स पिंदी कि छुओ, सीए तार टिपिकल मूवमेंट देखेइबो। तमर जो टच ता ताको टच बळे लागिवो ना, शॉक है कि से वेरिएशन मूवमेंट देखेइबो? शॉक। शॉक। यस। अरे बोर्ड क्लियर आसुनी। ए क्लियर आसुनी ना आसुनी? लास्ट लाइन टा कोन लेखचंदी कहि दियंतु। ठीक अछि, ठीक मो नास्टी लेखिबी मो बोधे। ओहो तो ठीक अछि। ओहो एटा बहुत गुडे लाइन हे गेला त। सोलेन, सोलेन पॉल्बिनस लिप बेस, सोलेन पॉल्बिनस। यहाँ पर थोड़ा सोलेन होता है, देखो ये सोलेन होता है कि नहीं? मैंगो का देखा, मैंगो का देखा होगा। इन मैंगो लीफ द लोअर पार्ट इज सोलेन और नॉट? Yes, But sir. in many cases it is solen. Okay, mango में थोड़ा सा सोलेन होता है, but it may be flattened. In monocot it is flattened. आप राइस में देखना फ्लैटेंड है, कोकोनट में देखना, कोकोनट का बहुत बड़ा सा लीफ होता है, उसका लास्ट वाला देखना बाहुंगा, फ्लैटेंड होता है कि नहीं? Yes, sir. तो सोलेन और पॉल्बिनस लीफ राउंड टाइप का होता है। तो यहाँ यहीं पर गेम होता है, यहाँ पर यू आर थिंकिंग हियर, नो हियर। तो यहाँ पर वो पानी लूज कर देंगे इंटरसेलुलर स्पेस को, तभी ये डाउन हो जाएगा, फिर पानी ले लेगा या तो फिर ऊपर आ जाएगा और पानी यहाँ पर जाएगा, तो ये ठीक ठाक हो जाएगा। ये लीफ सब बंद हो जाता है ना। ओके, थिग्मोट्रोपिज्म, थिग्मोनास्टी, थिग्मोनास्टी लिखो। थिग्मोनास्टी कहाँ पर है? इंसेक्टिवरस प्लांट्स में।
स्टिग्मोनास्टी कहाँ पर है? इंसेक्टिवरस प्लांट में। ये ऐसा होता है, यहाँ पर एक इंसेक्ट घुस गया, इसका जो अपिकल लीड होता है ना, कलर्ड अपिकल लीड, वो क्लोज हो जाएगा। मैं थोड़ा बनाता हूँ आपको, इसको बनाता हूँ थोड़ा। ये कलर्ड अपिकल लीड, आफ्टर एंटरिंग इट विल बी क्लोज्ड। तो ये टर्गर चेंज के लिए ये परमानेंटली क्लोज हो जाएगा, या फिर थोड़े टाइम के बाद इंसेक्ट डाइजेशन के बाद फिर इट विल ओपन। It will open. It will open. It will open. This is a variation movement or turgor movement? Variation. Variation. बस हो गया आपका, ठीक है। मूवमेंट इज ओवर। नाउ विल गो फॉर दैट क्वेश्चन पेपर। आ गया, दिखाई दे रहा है? No, sir. No, sir. Yes, sir, Asla. देखो फर्स्ट क्वेश्चन देखो। Sir, देखा जाऊने। ତମେ ସେଟା ଓହୋ ଆସିଲା ନା ଆସିନି? No, sir. Sir, ମୋ screen ରେ ଆସି ଯାଇଛି। और तम पाखरे जो कालीठू जोटा करनथली कि स्मरणिका, Yes, sir. यू हैव दैट अर्लियर, जो डाउनलोड कर लीजिए। शेयर हुआ था ना पहले से? Yes, sir. Sir, करूचे। हाँ, सेटा को ओपन कर दे, डाउनलोड करेगा क्या नहीं, ओपन कर लगे जो ना। हेला फर्स्ट क्वेश्चन। आर्यन देखाउची? Yes, sir. सेकंड क्वेश्चन को एब्सिसिक एसिड। सेकंड क्वेश्चन आंसर कौन हो? Citric acid. एब्सिसिक एसिड। यस, वेरी गुड, Yes, sir. abscisic acid. And question number 1 थोड़ा typical दिया है। Coleoptile tip was removed. That term I told you earlier. Can you name that term? It is defoliation or decapitation? Decapitated. इसको क्या बोलेंगे? इसको क्या बोलेंगे बोलो? डिकैपिटेटेड। Yes, decapitated हुआ था। तो हम लोग को लगा कि शूट अपिकल मेरिस्टेम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर फोटोट्रोपिज्म and the auger, तो and placed on the auger for 1 hour, तो auger उसको ले लिया ऑक्सिन को, and now auger would produce a blending when placed on one side of caught coleoptile stomes. And what it signifies, it made possible the isolation and extract exact identification of auxin, is the basis for quantitative determination of small amount of growth promoting substances. It supports the hypothesis that indolacetic acid is auxin. No, it demonstrated the polar movement of auxin. थोड़ा बहुत हो सकता है, but
डेमोन्स्ट्रेटेड पोलर मूवमेंट और भी किस कारण भी हो सकता है, तो दैट इज डिफरेंट थिंग. तो डेमोन्स्ट्रेटेड पोलर मूवमेंट इज वन ऑफ द पॉइंट. It supports that hypothesis that indolestic acid is oxygen. It made possible. Which one is best one? Went କରିଥିଲେ तो went discovered and isolated the oxygen. ହେଲା तो कोटा बेसी करेक्ट लागुଛି तुमको को आंसर रे भूल थाई पारे तमे एथिरे को कोटा करेक्ट. Hello. Isolation and exact identification of oxygen. Yes, that is more correct. Okay, आंसर में B दिया हुआ है शायद, तो डोंट थिंक दैट इज करेक्ट, क्योंकि यहाँ पर अगर का क्वांटिटेटिव वैल्यू कुछ नहीं दिया कि 4 अगर ब्लॉक रखने से हो गया, 2 अगर ब्लॉक रखने से हो गया, तो इट इज अबाउट द क्वालिटी. तो क्वालिटी के हिसाब से अगर हम जाएंगे तो ऑप्शन ए, ठीक है, ऑप्शन ए दो. एंड एक्चुअली वेंट डिस्कवर्ड एंड आइसोलेटेड आल्सो बाय द अगर ब्लॉक्स, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट. जय बुझेला मु चित्रटा करि देबी कि चित्र करिया दरकार होची कि बुझिया पई मु कर देबी, नले जे काली कहितले डिकैपिटेटेड, किंतु डिकैपिटेटेड रे जदि हमें ऑक्सीजन ब्लॉक्स थोइबा ताले से नॉर्मल बिहेव करची, सेतिर जणा पड़ची जे ऑक्सीजन रो रोलटा अछि हला बुझि पड़छ. एवं ऑक्सीजन रो एटा गोटे क्वांटिटेटिव ना क्वालिटेटिव एनालिसिस. इट्स ए क्वालिटेटिव एनालिसिस कहना केते अमाउंट किछि लेखिली हला सेते एटा क्वांटिटेटिव. क्वांटिटेटिव थार क्वालिटेटिव एनालिसिस ता बेसी करेक्ट होची हला. जदि से लिखितंदा आउट ऑफ 10 blocks of अगर 1 or 2 are sufficient, then it is different thing ना. तो मु तुमको एटे संग संग चित्र भी कर दोची तले तुम टिके सुविधा हो. एटा एंती थिला, एटा आसी थिला थरे बेली मडा करिली बाती होई ना, माने कम रे कर देथिले इता नै कि एटा करिया पड़िबो. एई जागा रे you have added the agar here ना, एई साइड को देइछ अगर टेकु एई साइड को देइछ ताहा जा द्वारा एटा एमिति बंकी जीवो ना, केना जो एडे अगर रहिला सेई एडे ग्रोथ अधिक हबो, जा फଳରେ कि ये टर्न करिवो ए एड को हला. बुझि पालो तो काली कोन करथिले मोनालिसा एंती करिके रखि देथिले, लाइट पडिले भी किछि तार होउनी, फरक पडुनी, किंतु आजि लाइट सहित किछि रिलेशन नाही. जोआडे ऑक्सीजन दिया गला सेड से मूव करि गला हला. क्वेश्चन नंबर Yes, sir. 3. क्वेश्चन नंबर 3. Mike, you can see the video. I will share the video. Yes, sir. नंबर ऑप्शन 9. और क्वेश्चन नंबर 3 रे जदी देखो, जदी अंधार रे रखा जाए एक्सेसिव ग्रोथ हुए हला, एटा सीडलिंग रो ग्रोथ हुए, तले एटा को कोन कोआ जिवो डिफोलिएशन. डिफोलिएशन माने पत्र सब खसी पड़ला. एम्बोलिज्म ना, एम्बोलिज्म माने चांस एंट्री ऑफ वाटर. Etiolated. Yes, it is called etiolation. Etiolated हला. स्मरणिका etiolated माने कोन internodal elongation. तले which hormone is responsible for that? Gibberellin. Etiolation ପାଇଁ which hormone is responsible? Gibberellin. Yes, etiolation Gibberellin. ପାଇଁ gibberellic acid. Gibberellic acid is responsible ना. हे गला ता पर पॉइंट पास.
कुह रोहित अल्बिनिज्म कौन अल्बिनिज्म माने व्हाइट ही जीवा जेनेटिकल बट इक्यूलेशन इज जेनेटिकल और फिजियोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल हाँ फिजियोलॉजिकल द सीड जर्मिनेशन व्हिच हार्मोन खोजो खोजो जल्दी seed germination internodal elongation and flowering which hormone जिबेरेलिन Berylin. हाँ जिबुलिक एसिड 4D 5 टिके कंसंट्रेट करो मने पड़ जिवो 5 रे फोटोट्रोपिज्म पई किए दाई ऑक्सिन Auxin. हाँ वेरी गुड ऑक्सीजन क्वेश्चन नंबर 6 कॉइलिंग कॉइलिंग पई कोन कहितली Thigmotropism. हाँ थिगमोट्रोपिज्म आउ किछि हबनी देखो आउ किछि हबनी मोनालिसा बुझेला अभिप्सा बुझेला यस सर एटा थिगमोट्रोपिज्म कहि परिबा ताको आउ कोन कहि परिबा सर्कमनुटेशन थिगमोट्रोपिज्म भी हला सर्कमनुटेशन भी हला कने से टच द्वारा से जानि परला जे आरी चारि पटे मूव करिवार अछि हला एवं तापर से सर्कमनुटेशन देखेबो हला त थिगमोट्रोपिज्म as well as सर्कमनुटेशन कोउटा सिंथेटिक ऑक्सीजन IAA. हाँ एटा टिके स्पेलिंग भूल हो जाइछि ना एटी स्पेलिंग टा भूल हो जाइछि एटा नाफ्थालिन एसिटिक एसिड हेतले भलो होइतांदा ना एटा 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 रे कोन होबा कथा NaA NaA नाफ्थालिन एसिटिक एसिड लेखो what I can write apart from naphthalene acetic acid can I write any other things naphthalene acetic acid को छाड़ी के आउ कोन लिखि परिबी की अरे 24D 245T हाँ 24D 245T भी लिख परिबी ना सर आंसर कौन हो सर बी ना ए 7 रो A. यस 7 रो ए पर नेचुरल पचार नहीं सिंथेटिक पचार नेचुरल पचार नहीं सिंथेटिक पचार यस तमे आउ गोटे लेख 24D and 245T ता परटा which one of the following acids is derivative of carotenoids asta are you there carotenoids को गुडा theory हम जानि नथियो बोले Indole 3 acetic acid. नहीं carotenoids रो बी नहीं सेटा तो इंडोल एसिटिक एसिड एब्सिसिक एसिड ना carotenoids रो एनसीईआरटी बॉय क्लास 11 देखियो मोनालिसा एंड स्मरणिका have you started growth hormone नो सर हाँ सेथिरे तमे अच्छी एनसीईआरटी बॉय नाउ फिजियोलॉजी को जाओ ग्रोथ हार्मोन को जाओ कैरोटिनॉइड्स विल बी देयर जदि एटा मो कहितांती प्यूरिन बा आडेनाइन तले कोउटा हितांता प्यूरिन बा आडेनाइन साइटोकाइनिन आडेनाइन साइटोकाइनिन हला इंडोल डेरिवेटिव्स ऑक्सिन the carotenoids I think it's abscisic acid terpene ba lipids heitile terpene ba lipids which hormone gibberellic acid question number 9 एटा तो बहुत सहज अछि बुझी पड़छ ना बुझी पड़ना से पचारची सेनेसेंस हेले ता पर स्टेज ता कोन
माने एजिंग रो पर स्टेज जदी हबो हला फ्लावरिंग प्लांट्स रे ताले वेसल्स एंड ट्रैक्टिड्स फॉर्म हबो ना लीव एब्सिशन हबो लीव एब्सिशन लीव एब्सिशन हबो जदी भी जाने क्लास करनी जदी एति की भी कंसंट्रेट कर दबो आलेन ए जो हमरो जो ये जो तमरो एग्जाम कवर हो ना जो एग्जाम दबो सेटा कवर हो द लीव्स एब्सिशन जय ता परटा को leaf abscission. What are the hormones which are responsible for leaf abscission? It is ethylene and abscisic acid, growth inhibiting hormone. Okay. Abscisic acid. Ethylene and abscisic. Yes, sir. Mainly abscisic acid. What is the main growth hormone? What is the main growth hormone? Oxide. No, it's gibberellic acid. Yes, good. And what is the main growth inhibiting hormone? It's abscisic acid. Because it is also doing certain work which is also growth promoting ethylene. For the first time, Nicotiana tabacum mein photoperiodism was discovered. Nicotiana tabacum. Then which one is the answer? tobacco. Every time I'll give you some clue and you have to answer. It's tobacco. And tobacco is a SDP, short day plant. Okay, SDP. कॉटन में कॉटन इफेक्ट एक बोला था मैंने कॉटन में which hormone was discovered in cotton? Any of you? कॉटन इफेक्ट बताया था मैं बायोआसे में. Which hormone is responsible? माने which phytohormone? कॉटन इफेक्ट. अरे कहीं भी को जने कॉटन इफेक्ट खोजो बायोआसे अंडर अच्छी. अरे तारो कौन तारो डेक्स्ट्रोरोटाटरी लेबोरोटाटरी हेतिला. हेलो अरे ऑप्टिकल आइसोमर्जिन देखितिला खाली खोजो बायोआसे रे किछि पढु ना पढी की आसिले हो कोन हबो एथर एग्जाम हबो नले होनी एग्जाम नले कॉम्पिटिटिव माइंड आसुनी कोन हबो अभिप्सा बायोआसे रे पढ cotton effect is related to which phytohormone? काली केही भी नथिलो की मोनालिसा कोन हबो साइटोकाइनिन ना कॉटन हां एब्सिसिक एसिड है ना बहुत सम परे कहलो बट गुड एब्सिसिक एसिड साइटोकाइन रहला रिचमंड लैंग्स इफेक्ट डिलेड सेनेसेंस ओके तो एब्सिसिक एसिड हबो ना. क्वेश्चन नंबर 11 Autonomic movement of growth. एपिनास्टिक बोल कहि परिबा ताको हमें कोन कहि परिबा एपिनास्टिक कहि परिबा ना तो Yes, sir. ऑटोनॉमिक मूवमेंट ऑफ लोकोमोशन ना ग्रोथ Growth. ऑटोनॉमिक मूवमेंट ऑफ वेरिएशन जदी हेता ना डेस्मोडियम गायरेंस जोटा ना 11 हे गला 12 को पीआर फाइटोक्रोम को लाइट ता ट्रैप करियो जे तमरो रेड लाइट और फार रेड लाइट विषय आईडिया थिवो हे करियो 680 nm कोडा BB. वेल आंसर कोडा बी एने सेटा भी रेड लाइट 650 रु आरंभ रेड लाइट ना तले हे गला बी वेरी गुड. Yes, sir. फार रेड लाइट ले केते हो 650 रु 700 एला रेड तले फार रेड केते हो 720 हला पुलिस Yes, sir. सेडलिंग मु बत्ते दउची ताबे तमे कहयो पुलिस सेडलिंग माने जापान हां ए
जापान रे कौन हुए ना डेंगा डेंगा लोकों को मो बड़िया लोकों को भावंती बोका माने जेते डेंगा लोक सेते बोका भावंती जापान लोक गुड़ा गेडा टिके कंपैरेटिवली तो सेमाने राइस रे देखिले हठात डेंगा डेंगा राइस गछ हो जाईची ना बिकॉज ऑफ वन फंगल इन्फेक्शन and that fungal is Gibberella fujikuroi. Okay, it belongs to Ascomycetes group. Mohik bujela Ascomycetes group रे Gibberella fujikuroi बोली गोटे अछि ना Yes, sir. कि इन्फेक्ट कले गेडा गेडा राइस को छोड़ा बहुत डेंगा ही जानती तले जो इंटरनोडल एलोंगेशन को हार्मोन द्वारा हुए Gibberellins. हाँ गिबरेलिन हाँ Gibber. गिबरेलिन हाँ तो फुलिश सीडलिंग तले लिखि दियो इंटरनोडल एलोंगेशन ठीक है कष्ट हो पारे बट यू ट्राई एंड आस्ते आस्ते एटा इजी लगियो तुमको व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड ए जो एटा D. एटा हमें 6 आवर्स परे जाई कि एटा करंती 6 आवर्स परे हला एठी हमें केते समय परे करूचे मात्र 2-3 आवर्स परे करूचे तणो ऑब्वियसली इट इज डिफिकल्ट बट तमे किछटा क्वेश्चन कर दियो आ किछटा क्वेश्चन करी के आस्तिबो जोडा न होबो मु कर देबी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कहला कोटा ना गिबरलिक एसिड लेवल D. इज नॉट करेक्ट हां हां इट्स बॉम्बे वेरी गुड गिबरलिक एसिड इज ए ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन so it will not do that the bombay तो Yes, 15 sir. हाँ 15 आंसर जदि के कहि परियो को जदि हमें प्रूनिंग कर दवा टे काटी दवा तले बाड़टा जो हेजेस माने हम जो गच्छर जो बाड़ा देई थांती ला सेटा डेंस ही जो द हेज इज बिकमिंग डेंस काहे ना अपिकल बोर्ड ता रिमूव कर देलो तले कोटा एक्टिव ही जीवो अभिप्सा कोटा एक्टिव ही जीवो 15 न आंसर कोन हबो आस्ता कोटा एक्टिव ही जीवो auxiliary boards will be active the over हाँ but नहीं सेतिक रे आंसर सरिलानी मते को which hormone is responsible for overcoming of apical dominance is by auxin here it is overcoming Cytokinin. yes it is cytokinin okay good 16 an enzyme that can stimulate germination of seed any of you and which phytohormone is responsible for that Gibberellin. yes and can you name that enzyme responsible for that अरे स्टार्च को मोबिलाइज करता है Alpha amylase. हाँ मैंने 17 भी हो जाएगा तो 17 20 तक कर लीजिए बस उसके बाद रख लेते हैं ओके 17 इजी है लो टेम्परेचर इंड्यूस्ड फ्लावरिंग इज और ब्रेकिंग ऑफ डर्मांस इज कॉल्ड एज vernalization cell elongation in case of internodal regions तो ये एक peculiarity है cell elongation in internodal regions बोलो 18 बोलो Tillage. Gibberellin. ओनली सेल इलोंगेशन साइटोकाइनिन बट इंटरनोडल के साथ अगर कनेक्टेड होगा तो गिबरेलिक एसिड्स होगा गुड एंथेसिस क्या होगा ओपनिंग ऑफ फ्लावर बोलते हैं एंथेसिस एंथोलॉजी स्टडी ऑफ फ्लावर एंथोटैक्सी अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर एंथेसिस इज ओपनिंग ऑफ फ्लावर पहले कौन सा वाला होगा D. हाँ दिल्ली है ना D. 20 टा को सॉरी लाजी क्लास 21 टा ये कहबो जेआरडी टाटा 21 and 20 ओम 22 20 के कहबो को जल्दी अरे 12 हाँ अरे चक्र पछी पूरा चक्र को 20 टा कौन नाइट टा जदी इंटरप्टेड होची लाइट द्वारा से फ्लावरिंग दउनी
किंतु नाइट जदि कंटिन्यूअस दउची फ्लावर दउची एथु जणा पड़ला से गछटा कोन short day, short day, हाँ सर्टे प्लांट्स वेरी गुड 21 जेआरडी टाटा कौन को जय हाँ ए ना सी ना बी सूट के लिए क्या चाहिए दादा अरे नोट्स हाँ ऑप्शन नहीं, सी सी होगा हायर साइटोकाइनिन एंड लोअर ऑक्सिन 22 भी जॉय बोल पाओगे शायद ओम ओम बताओ तो 22 जॉय एंड ओम कोई भी बताने से होगा बार बार 50 बार रास्ता यू आर oxygen, ऑप्शन sir, oxygen, ऑक्सिन ऑक्सिन ठीक है होची तो सबु सबु करि न पाले भी नोट्स देखिबो एते कम समय भीतर हम बहुत गुडे क्वेश्चन करिछु एंड आई होप कि तमे करि पारुछ बहुत कम समय भीतर हम पढैछि वन क्लास ओनली ऑलमोस्ट वन और टू क्लासेस इट शुड बी टॉट फॉर 6 आवर्स एट लीस्ट तो तथे तमे करि पारुछ एंड जोटा न हम कर देबी ना तो कर दे पालो सेनेसेंस टाइम तो तमे ऑलरेडी जानिछ आबा सेनेसेंस माने आबा ना सेंती फ्रूट फॉल और लीफ फॉल को किए कंट्रोल करे इटा लास्ट क्वेश्चन हो फ्रूट फॉल एंड लीफ फॉल फ्रूट फॉल एंड लीफ फॉल व्हिच कंट्रोल एब्सिसिक एसिड एब्सिसिक एसिड कंट्रोल करता है या करता है प्रिवेंट्स और उसके लिए अरे कल कहते ऑक्सिन ग्रेडियंट थ्योरी नाफ्थालीन एसिटिक एसिड इज आल्सो ए ऑक्सिन लिखो नाफ्थालीन एसिटिक एसिड इज आल्सो ए ऑक्सिन लिखो इसको तो कल कहते ऑक्सिन ग्रेडियंट थ्योरी ऑक्सिन कमी गले फॉल हुए ना तो नाफ्थालीन एसिटिक एसिड इज आल्सो ऑक्सिन एंड ऑक्सिन इज रिस्पांसिबल फॉर दैट ब्रेकिंग ऑफ पोटैटो ट्यूबर इज द लास्ट क्वेश्चन इसमें एक्चुअली कल के हिसाब से एक डिफरेंट होता है आज के हिसाब से डिफरेंट होता है ओके यू हैव टू आंसर 25 यहाँ पर आंसर नहीं है which hormone is responsible कल बताया था पोटैटो ट्यूबर का ब्रेकिंग ऑफ डोरमेंसी के लिए एथिलीन बट अगर एथिलीन है इंड्यूस करता है बट गिबरेलिक एसिड हेल्प करेगा कि नहीं एनी ब्रेकिंग ऑफ डोरमेंसी एंड सीड जर्मिनेशन और ट्यूबर जर्मिनेशन यस सर नहीं है तो you have to go for गिबरेलिक एसिड ओके तो यू सॉल्व ऑल दिस थिंग्स आप बुक रेफर करके कीजिए अगर नहीं होगा मैं कर लूंगा ठीक है आज यहीं पर रहने दीजिए गुड नाइट गुड नाइट सर Good night, sir. गुड नाइट thank you. Good night, sir.